my dear, very good day to all of you. First of all, I would like to give a correction of page number 6. Question number 2. To read the letter. The postmaster. The postmaster reads the letter. Who reads the letter? The postmaster reads the letter. It was the correction. And as far as the whole story is concerned, here an old man who is known as Lencho, उसका नाम लेंचो होता है. He lives on the top of the lorry, and in the entire village there is one house. It was his own house. He has children, wife, he has big farm, agricultural fields. Now he thinks, as he was very good farmer, very good peasant, बहुत अच्छा कृषक था, बहुत अच्छा किसान था, therefore he knows well the demand of the crop of his time. कि कब इसको खाद चाहिए, कब इसको पानी चाहिए, like this. He was very closely, he was intimate. He has a very keen observation of his crops. बहुत अच्छा विचार था, बहुत अच्छी नॉलेज थी उसको. तो he wants that at least a little shower is required, or irrigation or water is required for his crop. Now God listened him. Rain occurred. He became very much happy. He thinks that these are the coins. Why it is known as coins? Because after getting the yield or production of his crop, he will be able to sell into the market and will earn money. जब उसका प्रोडक्शन होता, जो यील्ड होता उसका, जो कॉर्न वो पाता, जो अनाज वो पाता, वो मार्केट में बेचता, अपने घर खाने के लिए रखता इत्यादि. तो इससे वो क्या होगा? He would become prosperous. वो धनी होगा, समृद्ध होगा. But it has not happened because the hailstorm occurred and the whole crop of this farmer was destroyed. सारी फसल उसकी बर्बाद. It was very problematic condition to Lencho. Neither he had grains or corn stored into his house to feed the whole year to his family. उसके परिवार में इतना धन नहीं था या इतना अनाज नहीं था कि वह पूरे साल अपने परिवार को बिना प्रोडक्शन हुए खिला पाता. And they hadn't money. Why? Because he was poor. He hadn't much money to buy the seeds to sow into the field for the next crop. उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह उस बीज खरीदे और पुनः वह बुआई करे जिससे कि उसका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए हो सके. He was a simpleton. He was a fear-stricken person. He has firm faith in God. That is unflinching faith in God. Unflinching faith मतलब इतना ज़्यादा विश्वास था कि उतना विश्वास किसी को ईश्वर में होता दिखाई नहीं देता. Unflinching faith. What is the reason? How do you know that he has unflinching faith in God? Because he thinks that only the God will help us. कि केवल और केवल ईश्वर ही हमारी मदद करेगा और कोई नहीं. Then what he decides?
he decides to write a letter for the God, to the name of the God, which is not real. In this real world, it will not possible. It is not possible. In the real, इस संसार में जब से पृथ्वी है तब से लेकर आज तक क्या कोई टेलीफोन, कोई मोबाइल मैसेज, कोई रिटन लेटर ईश्वर के एड्रेस पर भेज सकता है? नहीं। मंदिर के एड्रेस पर भेज सकता है, पुजारी को दे सकता है, कोई बहुत बड़ा सन्यासी है जो हम उसको कह सकते हैं कि वो एंजल है गॉड का, देवदूत है गॉड का, या फिर बहुत बड़ा फकीर है, तो वो मेरी बात सुन सकता है, लाइक है। बट डायरेक्टली गॉड कैन नॉट लिसन अस, इट इज इम्पॉसिबल अस। ओनली वी कैन remind God through meditation, through reciting the name of God. We can understand the existence of God, and he had firm faith in the existence of God. God के अस्तित्व में उसका बहुत विश्वास था. Therefore he has written a letter. What was the content of the letter? What was the subject of the letter which he has written to God? He has demanded 100 pesos. That will be sufficient to feed his family throughout the year, as well as he can utilize some pesos out of 100 to buy the seeds and sow into the fields. तो उस 100 पेसों से वो क्या कर सकता है? वह पूरे साल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, साथ ही वह कुछ पैसे बचाकर बीज खरीद सकता है जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए लाभदायी होगा या उसका काम हो सकता है. Now, when he has written the letter, next day he arrives to the post office. Why does he go to the post office? In order to know whether any letter comes from God to his address. शायद कोई लेटर गार्ड के पास से इसके नाम आया होगा, इसलिए वह पोस्ट ऑफिस दूसरे दिन जाता है. Then what happens with the post office? पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? The postman when goes to the mail box or letter box. लेटर बॉक्स क्या होता था पहले? जब ये अब तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, उसका कोई यूज नहीं रह गया है. अब तो लोग लेटर लिखते नहीं हैं, मोबाइल में मैसेज करते हैं, मेल कर देते हैं. ठीक है, या तो मैसेज कर देते हैं या फिर मेल आईडी से मेल कर देते हैं, या फिर अब लेटर भेजने का काम डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस किया जाता है, रजिस्ट्री किया जाता है, या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है. और सरकारी काम के लिए ही अब इस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं. प्राइवेट कंसर्न के लिए, अपने के लिए लोग अब यूज़ नहीं करते. जैसे पहले क्या था, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड एनवेलप. एनवेलप जो लिफाफे होते थे, इनलैंड लेटर कार्ड को अंतर्देशीय कहा जाता था. एक पेज होता था, उसमें फोल्ड लगे रहते थे, उस पर ऑलरेडी टिकट बना रहता था, लोग उसी पेज पे लिखते थे और फोल्ड करके पेस्ट कर देते थे और मेल बॉक्स में डब्बे में डाल देते थे. पोस्टमैन जाता था और उस डब्बे को खोलता था, लॉक लगा रहता था, वो खोलता था, जितने भी उसमें लेटर्स रहते थे सबको कलेक्ट करता था, ले जाता था. इन द सेम वे द पोस्टमैन goes to the mailbox, opens it, collects the letter, and it is very funny and surprising matter for the postman. What was the surprising? आश्चर्यचकित होने वाली बात क्या थी? That he has got a letter that was addressed at the name of God. That is a very foolish action of a person he has spoken, and therefore foolishly, in an enjoined manner, he came to the postman or his officer, postmaster or his officer, and said to him, now you see, in this world such persons are living, those have firm faith in the name of God and have written a letter at his address. Just you see, sir. The postmaster
opens the letter, reads the content and becomes serious. अब जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है, उस चीज को पढ़ता है, तो बहुत सीरियस हो जाता है. And he decides that I should sustain the faith of such letter writer who has unflinching faith in God. वो क्या डिसाइड करता है? वो कहता है कि हमें इस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना नहीं है. इस व्यक्ति के विश्वास को, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो इसके विश्वास को रखाना है, बनाए रखना है, जिससे इसका दिल न टूटे. तो व्हाट ही डज देन? He decides not to break the faith of that person. First, the second, he mobilized, he persuaded, he coaxed, he motivated, he requested the staff. इन लोगों से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, अपने स्टाफ के मेंबर से मोटिवेट करता है लोगों को टू डोनेट few amounts of money at the name of God in order to keep the faith of that person. तो अब वो क्या होता है? अब the staff member give their charity, दान देते, charity. तो the total amount that could be collected. अब देखिए, अब इसमें ये बात आ सकती है, जब कलेक्ट ही करना था तो 100 क्यों नहीं किए? अरे 100 कर देते तो राइटर कैसे बताता कि क्या क्या है? राइटर को तो और भी बात करनी है. ये तो स्टोरी है नियरली, दिस इज नियरली अ स्टोरी, इट इज नॉट अ रियल हैपनिंग दैट हैज हैपेंड. Only we have been reading the story, and it is the caliber of the author that he has narrated, he has propounded such kind of idea into his mind, and then he has written. उसने लिखा और इस तरह की चीजें. तो अब क्या हुआ? उस वक्त लोगों का संभवतः वेतन कम रहा होगा, पैसे उतने सबके पास नहीं आते रहे होंगे, या तत्काल पता नहीं क्या, क्योंकि डेट तो है नहीं, सैलरी का डेट नहीं मालूम है कि कब सैलरी मिली या कब ये खर्च हुआ. पता नहीं कोई घर से लेके पैसा आया था कि नहीं आया था इत्यादि, या कोई कितना दे पाया. देयर मे बी अ डिफरेंट पेस. तो द टोटल कलेक्शन कुड बी 70 pesos. टोटल कलेक्शन कितना हुआ? 70 pesos. तो they have kept it into the envelope, and when Lencho came to have an inquiry about any letter at his name, कि उसके नाम का कोई लेटर आया है, कोई पत्र आया है, इसको इंक्वायरी करने जब वो ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, तो द पोस्टमैन hand over such envelope into his hand. हैंड ओवर कर देता है कि हाँ आपका लेटर आया, श्रीमान लीजिए, गार्ड के पास से लेटर आया. ठीक. तो we can be surprised that his letter has gone to God, and God also have replied his letter. पर उसका लेटर गार्ड पर पहुंचा, गार्ड के पास पहुंचा, और गार्ड ने लेटर का रिप्लाई दिया. इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर हम थोड़ा सा स्टोरी से हट करके चले, तो हम ये कह सकते हैं कि द एक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस वाज सेम एज द एक्ट ऑफ गॉड. कि ईश्वर की तरह से कि भाई ईश्वर के पास इनका लेटर आया और ईश्वर ने इसका जवाब. They became the angel of God, messenger of God, and now they have helped. उन्होंने उसकी सहायता की. अब not even a slightest surprise came over the face of Lencho when he has received that. भाई अब ये बात हो सकती है कि लेंचो ने जब लेटर गार्ड के पास से रिसीव किया, कि जो गार्ड ने इनको लेटर दिया वो रिसीव किए, तो थोड़ा भी इसको असर दिखाई नहीं दिया कि गार्ड ने बात सुन लिया और हमको लेटर दे दिया. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपलटन, fear stricken, and have firm faith or deep faith into the God. No slightest surprise seen
ओवर लेंचो। लेंचो के ऊपर किसी प्रकार का कोई सरप्राइज देखने को नहीं मिला। उसका कारण क्या था? वह बहुत गहरा विश्वास ईश्वर में रखता था। He had a very deep faith in God and its existence. God और God के अस्तित्व के बारे में उन्होंने बहुत गहरा ध्यान रखा था, बहुत गहराई से वो विश्वास करते थे, इसलिए उसके चेहरे पर किसी प्रकार का भाव दिखाई नहीं दिया। But when he opens the letter, he counted the money, he became angry. Right? That according to his demand and according to his faith, जैसा कि उसका डिमांड था, जैसा कि उसका विश्वास था, उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए he thought, उसने सोचा that this fault could not be happened by God. God के माध्यम से ये फाल्ट नहीं हो सकता कि हमने 100 pesos की डिमांड की थी and God had sent me only 70. No doubt. In the mediator, in the middle part, as the letter came through the means of post office, no doubt at all, it was the post office staff who might have stolen 30 pesos. तो ये 30 pesos जो है वो यहाँ के स्टाफ वालों ने चुरा, ऐसा उसने सोचा, इसलिए वो नाराज हुआ। किस पर नाराज हुआ? एट द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ से वो नाराज हुआ। और फिर वो काउंटर पे आता है। अब जब नाराज हुआ तो उसका क्या है? कंट्रैक्शन हो, उसके चेहरे पर क्रोध का एकदम पूरा इसका सिकुड़ गया, रिंकल्स आ गए उसके चेहरे पर, क्योंकि वो सोच रहा है यहाँ के लोग नहीं, बड़े गलत लोग हैं, ये क्रूर डप्पे लोग हैं, ये स्विंडलर्स हैं, धोखेबाज हैं, चीटर हैं। तो इस तरह से उसने सोचा और लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा? अब वो लेटर लिख करके मेल बॉक्स में डाला। इन सारी घटनाओं को पोस्टमास्टर अंदर बैठ करके देख रहा है। तो फिर पोस्टमैन बॉक्स में से लेटर आता है। He brings the letter once more from the box और इसको दिखाता है। पोस्टमास्टर फिर पढ़ता है और कहता है कि देखो क्या लिखा है। तब हमको मालूम होता है कि उसने दूसरे लेटर में क्या लिखा। उसने दूसरे लेटर में पोस्ट ऑफिस को या पोस्ट ऑफिस स्टाफ को कहा है क्रूक हैं, डिसीट हैं, ये चीज हैं, इनके माध्यम से थ्रू दिस मीडियम प्लीज गॉड डोंट सेंड द लेटर, डायरेक्टली गिव मी द लेटर। अब मुझे बीच वाले रास्ते से लेटर मत दीजिएगा, अब सीधे सीधे मेरे पास लेटर आ रहे हैं। बीच में आता है तो लोग चुरा लेते हैं पैसा। ठीक, तो अब यहाँ इस केस पे एक आयरनी आती है। आयरनी का मतलब व्यंग्यात्मक अंदाज होता है। एक्चुअली लेंचो सेड क्रूक बैंड फेलो टू द पोस्ट ऑफिस स्टाफ। पोस्ट ऑफिस स्टाफ को क्रूक बैंड कहता है ये चीटर है, डिसीट है, धोखेबाज है, स्विंडलर्स है, चोर है। जबकि वही पोस्ट ऑफिस स्टाफ उसकी मदद किए हुए रहता है। क्योंकि वो मदद किए रहता है बावजूद इसके कि उसके ऊपर अविश्वास किया जाता है, तो यहाँ आयरनी कहता है। अब हम चलते हैं, लेट अस सी द एक्सट्रैक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वी शुड सॉल्व सम क्वेश्चन।
Please see page number 3. The house the only dot yes God will. This is the passage. Passage 1, and here the only one in the entire valley sat on the crest of the low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we were really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God will." Now give the meaning of one intimately. Second, harvest. First question. Now the second question. Which two things who the land should see? From his house. Third question. What did Lencho pray to God for? Question 4. How did his wife respond to the hopeful attitude? Of her husband. Now, here you see this is the old pattern. The question from the passage is asked for 4 marks. One passage contains 4 questions and this 4 question contains 1 mark each. One extract is asked from the story and another extract
is asked from the poem. It is clear. Therefore, the exercise of extract from the stories are very necessary. So let us see the question of the first. Give the meaning intimately, that is closely. And the harvest, that is crop. It means half marks and half marks, the 1 mark. Now, which two things could Lenchu see from his house? The way of answer. Lenchu could see river and his fields from his house. Then river and fields. This is the correct answer. 1. This is the way. And the examiner now put the tick in the same way. As I told you on the very first day that I was the head examiner of boards. मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं करीब 15 सालों से हेड एग्जामिनर रह चुका हूँ ISC और ICSE में और फिर CBSE में। मैंने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, देखो ICSE में 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का भी पेपर होता है और ग्रामर का भी पेपर होता है। 80 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, चाहे वो ISC में ICSE में चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट। ICSE हाई स्कूल, ISC इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो वहाँ जाने के लिए रामार्टिनियर कॉलेज लखनऊ में जा करके हम लोग करते थे और 5-7 साल बाद सेंट पाल में उसका सेंटर आता था, तो हम लोग सेंट पाल जाया करते थे, ठीक है। लेकिन पिछले 5 सालों से हम CBSE के हो गए हैं, तो इधर हम अभी इस साल भी मैंने काम किया है। मेरे अंदर 20 टीचर थे जो काफ़ी चेक कर रहे थे और अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ। 19 तारीख को लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो 200 कापियाँ चेक नहीं थी, 2400 कापी थी मेरे पास, हैं सब टीचर चेक करते थे। तो फिलहाल मतलब आपको सब भेज दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम लोगों के पास जो हेड एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास ये सारे रूल रेगुलेशंस आते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है और आप कहाँ किस चीज़ पर आप टिक करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार बीच में कुछ नहीं लिख दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बीच में बड़ा वाला क्वेश्चन है, बीच में कुछ भी लिख दो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा दोस्तों। आज यह जान लीजिएगा कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको बता रहा है कि एक एक लाइन पढ़ी जाती है। अगर कोई टीचर आपको ये गुमराह करता है कि कुछ नहीं ऐसा आप बहुत देखे हैं, तो वो गलत बोलता है, वो झूठ बोलता है। केवल वो तुम्हारा विश्वास खरीदना चाहता है कि जान लो सर बड़े अच्छे हैं, कह रहे थे कुछ भी लिखो पास हो जाओ। हाँ, केवल अनसीन पैसेज, जो 2 अनसीन पैसेज हाई स्कूल में आते हैं, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि अगर ग्रामेटिकल फॉल्ट्स है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, आधा नंबर काटा जाता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा नंबर दे दिया जाता है, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आधा नंबर काट दिया जाता है। तो सेकेंड पैसेज थोड़ा सा टफ होगा, फर्स्ट पैसेज बड़ा आसान है, सेकेंड पैसेज टफ होगा। बच्चे मीनिंग में फंस जाते हैं, अपोजिट में फंस जाते हैं, एंटानिम्स जो सिनोनिम्स आते हैं उसमें फंस जाते हैं, तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ नंबर में मिल जाते हैं। लेकिन बाकी की चीज़ों में, लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर में, ग्रामेटिकल ग्रामर के एरर फाइंडिंग में,
फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। एरर फाइंडिंग है क्या? इन एरर फाइंडिंग what is the error? Half marks. And what is the correction? Half marks. If the error is wrong, then correction cannot be right. ठीक? अगर ये error और correction है तो ये error का लाइन है, ये correction का लाइन। और error में मान लीजिए कि यहाँ n होना चाहिए था और यहाँ 2 होना चाहिए था, सपोज फिर ये correction है। ठीक? तो अब यहाँ अगर लड़का एन की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिखा है और यहाँ 2 लिखा है तो इस 2 पर मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि करेक्शन जो राम क्या है यहाँ, तो जब गलती ही नहीं पकड़ पाया तो सही कैसे लिख देगा? और उस गलती तो गलती हो गई। आन की जगह पर अगर ऐट मान लो उसने लिख दिया तो ऐट तो एरर है नहीं, बच्चे ने लिख दिया, 2 सही है, बच्चे ने लिख दिया, लेकिन ऐड के स्थान पर 2 तो होना नहीं है, इसलिए दोनों गलत मान लिया। हाँ, ये गलत हो और ये सही हो तो आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत माइनर चीजें हैं जो बच्चों को लोग नहीं समझाते हैं या जानते ही नहीं हैं, या फिर क्या होता है, तो इस तरह से दिक्कत होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि एकदम टू द पॉइंट आंसर्स जो हमारे होते हैं एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट्स होते हैं, तभी जाकर के हमको नंबर मिलते हैं। नहीं तो नंबर तो 33% भी पास हो जाता है। जिन लोगों को हम लोगों ने 24 नंबर दिया है, 24 मार्क्स दिया है, उनको ये कहा जाता है भाई किसी तरीके से उसको 26 से 27 करिए, फेल वाले मत डालिए। तो ये होता है भाई, क्या जरूरत है? 19 मार्क्स भी अगर वो पाया है लड़का तो स्कूल में 20 मार्क्स है, फिर ठीक पा जाएगा, टोटल करिए 33 हो जाएगा, पास हो जाएगा। छेड़ते हैं, ठीक, ये काम। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ क्या है? What did Lancho pray to God for? तो लैंचो किसके प्रेयर करता है? लाइट सावर। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? लैंचो प्रे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां ग्रामेटिकल फॉल्ट्स होते हैं। डू, डज, डिड प्लस वर्ब 1, डू गो, डज गो, डिड गो, present tense, and this one is past, followed by first form of the verb. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो किया जाता है। देख लीजिए, व्हाट डिड लैंचो प्रे, प्रे इज अ वर्ब एंड डिड इज एन ऑक्सिलरी वर्ब और वो हेल्पिंग वर्ब, जो भी कह लीजिए। तो अब डिड प्रे लिखा हुआ है, जब इसे हम पास्ट, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड व्हेनेवर वी चेंज इट टू अफर्मेटिव सेंटेंस, देन वी राइट इन द पॉजिटिव मैनर, लैंचो प्रेड। डिड प्रे को जब हम चेंज करेंगे तो कहाँ जाएगा? प्रेड हो जाएगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें आंसर देने का तरीका क्या होगा? Lancho prayed light shower. Lancho prayed for light shower to God. Lancho prayed for light shower to God. You are supposed to write the whole sentence. Only I am going to write light shower. अब ये मेन है। देखिए आपके आंसर में 2 चीजें अब यहाँ देखा जाएगा। ग्रामर फॉल्ट पर वो प्रेड शब्द देखा जाएगा, तो प्रेड लिखा है कि नहीं लिखा है, एक पॉइंट ये बनता है।
और एक पॉइंट ये बनता है लाइट शावर शब्द लिखा है कि नहीं, या रेन जैसा शब्द कुछ लिखा है कि नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर कट जाएगा। प्रेड नहीं लिखा, आधा नंबर कट जाएगा। या डिड प्रेड लिखा है तभी आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि गलती। तो इसलिए डिड प्रेड फॉर लाइट शावर, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ डिड हिज वाइफ रिस्पॉन्ड। देखिएगा यहाँ डिड लिखा है, यहाँ रिस्पॉन्ड लिखा है, और ये रूल भूलिएगा मत कभी। डू डज डिड फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डू डज डिड कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में फॉलो करता है, जिसमें डू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? इट इज प्लूरल। बहुवचन डज सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर जो चलता है he, she, it and the name of anybody else. For example, सोहन एक आदमी का नाम, प्लूरल में I, we, you, they, मोहन एंड रीता, दोनों एक साथ। ठीक है, जब दो व्यक्तियों के नाम के साथ एंड जुड़ा हो, when two singular noun joined by and एग्रीमेंट आप वर्ब में बताता है। when two singular noun joined by and followed plural form of the verb, ये पहला रूल है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का है। मोहन, सोहन, रीता एंड गीता, 4 लोगों का नाम है, 3 लोगों का नाम है, 10 लोगों का नाम है, प्लूरल में, क्योंकि एंड जो जुड़ेगा वो लास्ट वाले शब्द के साथ जुड़ेगा और वहां प्लूरल वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। दैट शुड बी नोटेड। एंड डिड, दिस इज कॉमन, फॉलोड बाय बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, फॉलोड बाय बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी आएगी यू, दे, ही, सी, इट, मोहन, सोहन, रीता, गीता, रीता, सीता, सब के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। नाउ God alone could bring them happiness. God alone could bring them happiness. क्या? How did his wife respond the hopeful attitude of her husband? Now, his wife responded the hopeful attitude of her husband by saying, comma, God alone could bring them happiness. Now, my dear, I would like to end up the class today. And the next day, the remaining portion will be continued if it will be possible.